Hardly welcome to all of you on our YouTube channel CSNSR. I'm speaking Stella from the CSNSR. So today we are going to talk about ICAI merger demerger of CE firms aggregation of LLPS global networking guidelines, the part 2. For that we have our guest is a CE Vivek Khurana sir. Everyone knows him. Thank you so much, sir, to joining us and also giving your valuable time. Before further ado, I having a smallest request to all of you to subscribe our YouTube channel and do not forget to like, share, and comment. Now, sir, I would like to invite you to share the thoughts on the today topic. Thank you very much, Stella, and my sincere thanks to Team CSNSR for giving me once again opportunity on your platform to discuss on the another very important topic. In our previous video, we had discussed about the merger and demerger of CA firms guidelines by the ICI. And in that video, we promised you that part 2 will be very soon regarding the aggregations of the LLP. So today we will discuss about the aggregations of the LLP guidelines by the ICI. And if by chance you missed our first video, then my request to all of you, please go to CS Ansar YouTube channel and watch our this part 1 for the merger demerger of the CA firms. So in that video, we have already discussed the merger of the CA firm, which governing instruments are there, merger and demerger guidelines are there. Then in demerger, same guidelines are there. Then freezing of firm name, merger and demerger guidelines are there. LLP aggregations. Then this today we will discuss aggregations of LLP guidelines 2024. And then in our part 3, जो एक remaining part है, that we will discuss about the global networking guidelines 2025 issued by the ICI. So first think about aggregations of LLP guidelines. जो why aggregations needed? To LLP, we all aware as a chartered accountant, as a CA in practice, we can form the LLP with different CA partners. So now ICI want we should reach globally. I told you in our previous video that now our focus is to compete with the big four or the big five or the big 10. So that's why this new guidelines was there. Earlier the guidelines was the merger and demerger guidelines. Then now aggregations. So if you are running as a LLP, CA firm as a LLP, then how you can aggregate the LLP. So these are the guidelines. So this is the gadget. तो उसमें 23rd January 2025 it's published in the Gazette of India. So now why this ICI aggregations? So first of all I told you key as a small firm. In previous video I told you 70 to 75 firms are running as the small proprietorship. So IFCI want we should go globally. So it's not possible कि one thing I can do myself. तो अकेले तो होता नहीं सब कुछ मेरे से. So I should either go for the merger, and if a small LLP are there, like 2 or 3 partners are there, and they want to compete globally, or they want to compete with big firms, so it's the best to aggregate with another LLP itself. So first is the market demand. कि नाउ एवरीवन वांट्स ग्लोबली कि मींस आई वांट कि कोई मेरा दिल्ली का काम हो आई शुड गो इन दिल्ली अगर कोई मुंबई का हो तो दैट शुड बी आइदर मी और माय फर्म बिकॉज यू नो व्हाट क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस आर नाउअडेज दे वांट सिंगल रूफ कि मेरे को बार बार कहीं नहीं जाना पड़े मीन्स माई चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू my income tax work, my chartered accountant can do my GST work, my chartered accountant can do some other valuation works, everything they want into a single roof. And then how it's possible? It's not possible for a single person. Means nowadays lots of things are there day by day. Up GST dekh lo, daily some new notifications are there, some new things are there. It's not possible for a person to update themselves and then do like income tax work, then GST work, IFRS work, India as other things are there. So definitely we want a big network. So that's why
ICI wants कि if you are running a LLP then you must go for the aggregations. तो aggregations में like now it's the corporate culture, like at the top we should have the CEO, then operational head, finance head, marketing head. These kinds of things are there what ICA want. तो इसमें जो major important things है, one is parent LLP. You must remember that thing, parent LLP and the partner LLP. Parent LLP कौन सी है? In which firm the partner LLP want to aggregate कि वो under a umbrella entity, that's the umbrella entity. तो जिसमें आपको ज्वाइन करना है that's the parent LLP. और जो आप जो LLP ज्वाइन करना चाहती है that's the partner LLP. For example, there are two LLPs are there. One is ALLP, another one is BLLP. So B is a bigger size. So A, what they want to aggregate with the BLLP. So B will be your parent LLP and A will be your partner LLP. तो उसमें कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन जो है आपकी कि जो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है मोर देन 50%, अभी इसके ऊपर मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि दे शुड एडमिट्स कि उनका एक रेजोल्यूशन हो दैट टू अनदर फर्म में कि वो एज ए एलएलपी आप उसमें जो आपकी पेरेंट कंपनी है दे शुड एडमिट अनदर पार्टनर एलएलपी इनटू देयर फर्म, जो उनकी एलएलपी में है उसमें एडमिट करें तो एज ए अम्ब्रेला एंटिटी. और जो पार्टनर एलएलपी है कि पार्टनर एलएलपी सेम थिंग, यहां पे भी 50% से ज्यादा है, दे शुड ज्वाइन एज ए पार्टनर वहां पे और मेंबर ऑफ एलएलपी जो पेरेंट एलएलपी है एज अंडर द अम्ब्रेला कि अंडर वन अम्ब्रेला. तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग, we are discussing about the CA's LLP. I'm not discussing about the any other LLP. जिसमें अभी we will discuss कि only CA's are the members. Either CA into practice or sometime they are into part-time practice or sometime they are not into the practice. अभी मैं MDP की बात नहीं कर रहा, but yes, ICI are open कि MDP भी वो डिस्कस करेंगे, उसमें एग्रीगेशन होगा, वो लेटर ऑन व्हेन इट विल स्टार्ट देन विल डिस्कस. अब भी इट्स ओनली फॉर द CALLP. देन उसमें अगर एग्रीगेशन हाउ इट लुक्स कि मींस मल्टीपल LLPs, इट कैन कम अंडर सिंगल अम्ब्रेला कि जो एक पेरेंट LLP है उसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट LLP कैन एग्रीगेट्स. देन फ्लेक्सिबल प्रैक्टिस कि पार्टनर LLP है दे कैन रन. उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप पार्टनर एलएलपी उसमें आपके उसको ज्वाइन कर रही है आपकी जो पेरेंट एलएलपी, तो इट डजंट मीन कि दे कांट वर्क, दे कैन आल्सो वर्क एज पर द डीड. आप उसमें क्या लिखते हो वो भी हम डिस्कस करते हैं. देन देयर इज ए वन सेंट्रल गवर्नेंस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट. वो कैसे फॉर्म करना है दैट वी विल डिस्कस. देन कॉमन स्टैंडर्ड्स कि आपने कैसे ब्रांडिंग करनी है, आपने क्या पॉलिसीज, क्वालिटी कंट्रोल. मींस इफ 2 or 3 LLPs, they want to aggregate कि yes we should compete with the top 10 वर्ल्ड वाइड जो बिग फर्म्स हैं उनके साथ compete करना है, तो we must have the branding. हमें एक ब्रांडिंग करनी है, हमें एक LLP बनानी है और उसके अंडर we will do that. तो that it's the very very important step by the ICI as the aggregation of the LLP policies. तो नेक्स्ट क्या है जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, इट्स फॉर द बोथ either parent LLP or the partner LLP. Means जो full time practicing chartered accountants हैं in the LLP, that should be more than 50%. It's a more than 50% are there which are registered with the ICI. and उसमें 2 conditions है. First, हेडवाइज काउंट करना है एंड सेकंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द टोटल नंबर्स की अगर टोटल उसमें 4 है देन मोर देन 50% शुड बी एग्री फॉर द आइदर पेरेंट्स और द पार्टनर LLP. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है. एंड सेकंड थिंग, मिनिमम 2 individual full time practicing should be there at all times. It applies to both parent and the partner. I will give you one example. तो for example जो आपको मैंने अभी बताया कि minimum 2 individuals full time chartered accountant must be at that time.
और जो आपका एलएलपी एक्ट रहता है कि उसके अंडर आपको फॉर्म करना है, वो ऑल कंडीशंस में अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल, in case LLP is there where one partner A is full time, partner B is part time. So it means it's neither eligible for the parents LLP nor for the partner LLP. Means जो उनका टेस्ट है उसमें क्या टेस्ट है आपका कि एटलीस्ट टू, जो वहां पे है एटलीस्ट टू पार्टनर जो है आपके फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, एंड देन 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा पार्टनर्स दे आर एग्रीड, एंड ऑल्सो 50% फुल टाइम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है मोर देन 50% दे हैव द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड सेकंड केस, अगर वन पार्टनर, टू पार्टनरशिप फॉर्म में एलएलपी है, partner A is a full time, partner B is also a full time, yes, two partner full time is there, then it's the eligible, it meets the continuous requirement, either the parents or the partner LLP। देन वो रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन जो मेजोरिटी टेस्ट है, अगेन आई एम टेलिंग यू, टेस्ट नंबर वन, मोर देन 50% बाय नंबर ऑफ पार्टनर्स, मीन्स आपको हेड काउंट करने हैं कितने पार्टनर्स है, उसका फर्स्ट टेस्ट है मोर देन 50%, एंड सेकंड टेस्ट more than 50% profit sharing ratio. So both tests should be there for the parent LLP and the partner LLP. So this you have to see. Let's see by one example कि अगर कोई फर्म है LLP, उसमें फर्म मैं अगर बोलता हूँ तो इट मीन्स LLP बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीगेशंस ऑफ द LLP। तो LLP इज आल्सो ए फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आपकी, इट्स आल्सो ए फर्म। तो उसमें आपके जैसे टोटल पार्टनर्स हैं, आपके 5 पार्टनर्स हैं, फुल टाइम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है 3, तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग कितनी होगी? अगर वैसे नंबर वाइज देखें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 70%, और अगर हेड वाइज देखें कितने हो गए आपका 60%। मींस बोथ क्राइटेरिया आर फिल, मोर देन 50% आपके फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मोर देन 50% प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यस, means both tests are clear, either it can become the parent LLP or the partner LLP। सेकंड फर्म बी देखो, टोटल पार्टनर्स 5, उसमें सीए फुल टाइम प्रैक्टिस कितने हैं 3, तो मींस क्राइटेरिया फुलफिल हो गया 60%, एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 40%। नो, इट मींस both should be fulfilled, more than 50%, either profit sharing ratio, either not, both should be there, it's not either, it's both, and ओके, तो बोथ कंडीशन मस्ट फुलफिल। देन जो रिस्ट्रिक्शंस है कुछ, वन पेरेंट ओनली, जो कोई आपकी पेरेंट एलएलपी होगी तो इट्स रिस्ट्रिक्शन कि पेरेंट एलएलपी कैन नॉट ज्वाइन एनी अदर एलएलपी। कि ये नहीं हो सकता कि मैं किसी, हमारी जैसे एलएलपी है, हम किसी पेरेंट एलएलपी के साथ ज्वाइन करें और पता चले वो कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। Parent LLP cannot join any other LLP itself. But जो पार्टनर LLP है, पार्टनर LLP कैन ज्वाइन, वो भी ओनली वन पेरेंट LLP। ये नहीं है कि इफ आई एम ए पार्टनर LLP मैं एक्स के साथ भी ज्वाइन कर लूं, वाई के साथ भी ज्वाइन कर लूं। नो, ओनली विद वन पेरेंट LLP एट ए टाइम। तो आप वो जो स्लाइड्स पे लिखा है, मैं पेरेंट वाला पहले आपको बता गया। तो पार्टनर एलएलपी की रिस्ट्रिक्शंस है कि सिर्फ आपको वन पेरेंट एलएलपी ज्वाइन करनी है, और पेरेंट एलएलपी जो है वो कहीं और आप पार्टनर नहीं ज्वाइन कर सकती। बट यस, पेरेंट एलएलपी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टनर एलएलपी हो सकती है, उसके ऊपर अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दैट्स आल्सो पॉसिबल। सो एलएलपी एक्स wants to join two different aggregations for two separate lenders, no, it's not allowed कि आप एक ही जगह एग्रीगेशंस कर सकते हो, दो में नहीं कर सकते, अंडर वन अम्ब्रेला ओनली। देन नेक्स्ट, जो पार्टनर कंपोजिशंस है एंड एमडीपी फ्रेमवर्क है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी जो है ICI इज वर्किंग ओनली विद द CA मेंबर्स, बट यस इन फ्यूचर, जो आपको मैंने पीछे एक मैंने इसके ऊपर ऑनलाइन वेबिनार भी किया था एमडीपी के ऊपर, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के ऊपर, तो उसमें क्या है कि यू कैन बिकम द पार्टनर विद CA, CS, CMA, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स आर देयर। तो ICI सेड कि अभी जो है इट्स ओनली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट यस एमडीपी प्रोविजन जब एप्लीकेबल्स होंगे देन इट वुड बी फॉर एवरीवन। देन जो नेक्स्ट है आपका, जो नेम्स वगैरह, अब क्या हो सकता है इसमें, जैसे वन
ALLP, another one is BLLP. So ALLP is partner, PLLP partner. If they want, we should form a new LLP as the parent LLP. So yes, they can do it. Otherwise, if they want कि मेरे को ALLP या BLLP में से किसी को एक parent LLP बनाना है और another one should be the partner LLP, that also can be possible. और जो आपके if you want to form a new LLP as the parent LLP, then you can do, then you have to do for the ICAI regulations, जो आपका name approval है, MCA की क्या क्या उसमें formalities है, LLP Act है, वो everything you have to go for that if you want to form the new LLP. If you want the existing one, then also you have to inform the ICI, then aggregation कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ. सारे जो आपके प्रोसीजर है you have to follow. देन आईसीआई में रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग. तो रजिस्ट्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको जो एलएलपी जितनी भी है हमारी जो सीए फर्म्स वगैरह है, इट्स अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द आईसीआई. आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है रिगार्डिंग द नेम आपको एमसीए से अप्रूव करके आईसीआई से इन्फॉर्म करना पड़ता है. देन एफआरएन नंबर, अगर आपकी एग्जिस्टिंग एलएलपी है देन no need for the new FRN number. But yes, if you are forming a new LLP as the parent LLP, या फिर if you are forming a new partner LLP, then you must go for the new FRN number और उसको फिर आपको aggregate करना है. Then this you will aggregate with the parent LLP. Then next is board of management. That's very very important. कि when some partner LLPs aggregating with the parent LLP, then it's the duty of the parent LLP to constitute a board of management. तो पेरेंट एलएलपी की ड्यूटी है टू फॉर्म ए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट. तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में कौन होगा? ऑथराइज मेंबर, जो भी आपकी पेरेंट कंपनी जिसको जो उनका मैनेजिंग पार्टनर होगा वो तो उसमें पेरेंट कंपनी का, प्लस जो भी आपकी पार्टनर एलएलपी है, पार्टनर एलएलपी के ऑथराइज मैनेजिंग पार्टनर आल्सो द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर्स. दे कैन डिसाइड इट म्यूचुअली, बट इट्स कंपल्सरी कि आपको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करना है. उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ. देन इट्स द पेरेंट एलएलपी डिसीजन प्रिवेल टू एश्योरेंस, नॉन एश्योरेंस, ऑडिट एंड असाइनमेंट. बिकॉज आप उसमें मर्ज हो रहे हो तो उन्हीं के जो डिसीजन हैं वो प्रिवेल करेंगे. बट यस, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इज द फाइनल अथॉरिटी. वो उनकी पूरी पावर्स है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ. तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट व्हाट दे हैव टू डू. तो जैसे ही आप बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म करेंगे, आपकी पेरेंट एलएलपी जिसमें आपके ऑथराइज मैनेजिंग पार्टनर होगा पेरेंट एलएलपी के एंड द पार्टनर एलएलपी के, देन इट्स देयर ड्यूटी टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. कि जो भी आपकी लीगल एमसीए के साथ, आरओसी के साथ, आईसीआई के साथ जो भी एफिलिएशंस हैं, अदर थिंग्स हैं, दे हैव टू कंप्लीट. जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, इट्स देयर ड्यूटी. देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, कोई फाइनेंस है, प्रॉफिट शेयरिंग है, कैसे आपने अप्रोप्रिएट करना, एंड देन कोस्ट शेयरिंग है, मैकेनिज्म, हायरिंग एंड एचआर पॉलिसीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन है. तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका, दिस इज द, सिर्फ ये नहीं है कि सीनियर पार्टनर वो आपके जो क्या कहते थे उसमें, चलो अभी मैं पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, लीव दैट. तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट इज द वर्किंग बॉडी, इट्स द ऑपरेशनल अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी है उनकी, कि उन्हीं को डिसाइड करना है वेरियस कि कौन सी फर्म की जो आपकी पार्टनर एलएलपी है, वेदर इट विल वर्क, वेदर इट कैन अप्लाई विद द टेंडर्स आर नॉट, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, हु विल साइन इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ethics, everything that has to decide by the board of management. देन जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट्स है उसको ही ड्यूटी है, उनका उनका रोल है कि जो एसएसपी पोर्टल्स पे आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपडेट करना है, आपकी कोई एग्रीगेशन होगी तो आपको एसएसपी पोर्टल जो आपका ओटीपी बेस्ड है, उसी के बेस पे आपको
यहाँ पे अपडेशंस करना है। फिर जो डॉक्यूमेंट्स है एमसीए के पास या आईसीआई के पास, एंड इफ देयर आर सम मैनेजमेंट चेंज है या कोई पार्टनर ऐड किया, then everything it's the responsibility of the board of management. It's not like that ki board of management have to do their self, but it's their responsibility. They can do by their staff itself, वो आगे ड्यूटी लगा सकते हैं। देन रिगार्डिंग सेक्शन 144, आपके जो सेक्शन 144 है कंपनीज एक्ट में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन aggregations of LLPs are there, तो it doesn't mean कि we have 2-3 LLPs there, एक accounting कर लेंगे, एक auditing कर लेंगे। No, you can't do it like that. You have to follow the ICI ethics, जो भी ethics है या company laws में है, that you have to do. And even your जो partners LLP है, whether they are following it or not, as a board of management you have to guide them. आपको उनको गाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 144 की रिस्ट्रिक्शंस है कि इफ आई एम ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी मेरी फर्म एफिलिएटेड है या फिर माय रिलेटिव्स हैं, they can't do the accounting work, internal audit work, then it's the duty of the board of management to check कि कहीं वो पार्टनर एलएलपी उसमें कोई अकाउंटिंग वर्क तो नहीं कर रही, या अदर थिंग्स जो 144 में पूरे क्लोज है, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। You can go to the CSNSR YouTube channel and check that. So that is the very important role of the board of management to check regarding the ethics. And then another role जो एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का है, जो आपका इस्टेब्लिश मैकेनिज्म कि इन केस देयर आर सम डिस्प्यूट, तो हाउ वी कैन रिसोल्व द डिस्प्यूट, हाउ वी कैन गो फॉर द मीटिंग्स, कैसे हम आपस में डिस्कस करेंगे, कैसे बात करेंगे, कोई और अगर इश्यूज है तो इंटरनली कैसे हम रिसोल्व कर सकते हैं आपस में रिजोल्यूशन से, या इफ देयर आर 3 or 4 members with the majority thumb rule will work, and how it will work, and if it does not work internally, then how we can go with the external resolutions। external resolution में क्या है, arbitrations है, mediations है। तो that द बेस्ट प्रैक्टिस कि आप उसको डीड के अंदर मेंशन करो कि आपको अगर कोई डिस्प्यूट्स है, देन यू शुड गिव द नोटिस, देन मीटिंग्स, देन अगर आपस में नहीं डिस्कशन होता है इंटरनल रेजोल्यूशन के थ्रू, देन गो फॉर द मीडिएशन या आर्बिट्रेशन। तो दैट्स आल्सो द ड्यूटी ऑफ द बोर्ड ऑफ मेंबर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, व्हेन यू आर going to become a partner with someone, तो it means you are going to marry with someone, कि आप किसी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। तो जितने भी नेगेटिव थिंग्स हैं दैट यू शुड डिस्कस फर्स्ट, और जितना भी हो सके डू इट इन राइटिंग, कि इन केस हमारा झगड़ा होता है तो दैट वी विल फॉलो, आपस में बात करेंगे, 2 मीटिंग्स करेंगे, 3 मीटिंग्स करेंगे, नहीं होता जो हमारे एक्स पार्टनर्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे या फिर मीडिएशन के थ्रू। तो एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। देन empanelment and tenders, it's also the duty of the board of members। जो हमारे जो बोर्ड है उसको डिसाइड करना है, जो मैनेजमेंट्स है आपका उसको डिसाइड करना है कि जो वेदर जो पार्टनर्स एलएलपीज है, जो पार्टनर एलएलपीज हैं, वेदर दे कैन पार्टिसिपेट्स, या फिर जैसे आप एग्रीगेट कर रहे हो तो फॉर व्हाट पर्पस यू आर डूइंग, वेदर डूइंग फॉर टेंडर वर्क्स, या फिर किस पर्पस के लिए कर रहे हो, या इफ यू वांट कि माय पार्टनर एलपी आल्सो वर्क, तो दैट हैव टू डिसाइड बाय द बीओएम। बीओएम डिसाइड करेगा कि आपको पेरेंट एलएलपी सिर्फ टेंडर्स में अप्लाई करेगी या फिर पार्टनर एलएलपी भी कर सकती है। देन वो विल डू द कंप्लायंस वर्क, जो भी कंप्लायंस वर्क है टेंडर्स में अप्लाई वगैरह करना। तो बट वन थिंग इज देयर, इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन इज देयर। ये नहीं कि आप पेरेंट एलएलपी में भी अप्लाई कर रहे हो, पार्टनर एलएलपी में भी कर रहे हो, इंडिविजुअल अभी अपने नाम से कर रहे हो। नो, ओनली बीओएम टू हैव टू डिसाइड वेदर पेरेंट आर द पार्टनर, एंड देन कंप्लायंस वर्क जो भी उनकी रेगुलेटरी नॉर्म वर्क्स है। देन रिटर्न डीड्स, जो डीड है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम थिंग शुड बी देयर। बाई लॉज हैं आपके कि जो एलएलपी या पार्टनर्स हैं, जो उनके बाई लॉज हैं एंड द डीड्स है, इट शुड बी इन राइटिंग एंड इन डिटेल। फिर कि कुछ इट शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट विद द सी एक्ट। सी एक्ट के साथ तो हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते। कोड ऑफ एथिक्स है, काउंसिल गाइडलाइंस है, उसको ओवर रूल नहीं कर सकती आपकी बाई लॉज या डीड्स हैं। देन जो आपकी डीड्स है
वो इट्स लाइक ए हाउ टू रिसोल्व द डिस्प्यूट, एवरीथिंग शुड बी देयर। देन जो एक चेकलिस्ट है, आपको चेकलिस्ट क्या क्या चेक करनी है कि गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल के ऊपर, कि जैसे आपने बीओएम फॉर्म करा तो उसकी वोटिंग राइट्स क्या है, कोरम्स क्या है, कितने टाइम में मीटिंग करेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट शेयरिंग फार्मूला, जो एवरीथिंग शुड बी इन डिटेल्स, लाइक ऑपरेशन एंड क्वालिटी, डे टू डे एक्टिविटी के लिए हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। देन जो साइनिंग अथॉरिटीज है या डाटा सिक्योरिटीज है, ऑल थिंग्स, स्टाफ को अपॉइंट करना है, उसके लिए आपकी पूरी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके साथ। एंड देन ऑडिट रिस्ट्रिक्शन। एक तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको रोटेशन, रोटेशन प्रोहिबिटेड है। ये नहीं कि आप ये कहें कि जैसे रोटेशन पॉलिसीज है कि आपको जो आपके रोटेट हो रहा है तो दूसरे उसके थ्रू कर ले, नो, दैट्स नॉट प्रोहिबिटेड। कि और ये भी नहीं है कि 1 ईयर एक पार्टनर साइन कर रहा है, नेक्स्ट ईयर दूसरा पार्टनर साइन कर रहा है, नो। और इवन ज्वाइंट ऑडिट आल्सो प्रोहिबिटेड बिकॉज इट्स अंडर द सेम अम्ब्रेला। तो दैट्स आल्सो यू हैव टू फॉलो आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, जो प्रोफेशनल एथिक्स में मेंशन्ड है आपका, दैट यू हैव टू फॉलो। देन जो आपको वर्क कैलकुलेट करना है, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ आरएसीआई मॉडल। आरएसीआई मॉडल क्या है? सबसे पहले जो आपका आर मीन्स रिस्पॉन्सिबल, कि मीन्स हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो बंदा काम कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है टीम, दैट्स द रिस्पॉन्सिबल। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इफ वन पर्सन, इफ वन पार्टनर ऑफ द एलएलपी इज एग्जीक्यूटिंग सम वर्क, देन ही इज द रिस्पॉन्सिबल। देन अकाउंटेबल, जो अकाउंटेबल कौन है? जो साइनिंग पार्टनर है, दैट शुड बी अकाउंटेबल। देन कंसल्टेड वगैरह, कि जो आप स्पेशलिस्ट हैं, अदर पार्टनर्स वगैरह, इन्फॉर्म है, जो बीएम को आपने कंप्लायंस फंक्शन के लिए इन्फॉर्म किया। तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट विद फील्ड वर्क बाय पार्टनर एलएलपी 2, साइनिंग पार्टनर ऑफ पेरेंट एलएलपी ए, आईएफआर स्पेशलाइजेशन पार्टनर एलएलपी 3, बीओएम आई, तो आपके आरएसीआई में हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप एक वर्क को एलोकेट कर रहे हो, उनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उनकी आप लाइबिलिटीज फिक्स कर रहे हो, तो दैट्स द आरएसीआई मॉडल शुड प्रिवेल। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी फ्रेमवर्क, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक असाइनमेंट सिक्योर अंडर पेरेंट एलएलपी नेम, दैट्स द पेरेंट होल्ड, की उसकी जो पेरेंट आपकी एलएलपी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी लाइबिलिटी जो भी एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटीज है, देन बी यू हैव टू सी दैट। देन वो कैन साइन द ऑडिट रिपोर्ट। साइनिंग बेसिकली कौन करेगा? ऐसा तो है नहीं, जो बंदा काम कर रहा है, जिसने एग्जीक्यूट किया है ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, वो साइन कर सकता है, या ऑन बिहाफ ऑफ द पेरेंट एलएलपी कोई साइन कर सकता है। बट यस, दे हैव टू चेक कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा। इट्स आल्सो कैन डिसाइड बाय द बीओएम। देन एम्पेनलमेंट सिनेरियो, जो मैंने आपको बताया था पीछे, एम्पेनलमेंट सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि हमने एग्रीगेट कर लिया पेरेंट एलएलपी के साथ, नाउ बीएम डिसाइडेड कि नहीं, सिर्फ पेरेंट एलएलपी विल पार्टिसिपेट इनटू द पैनल्स। तो जो आपके पार्टनर एलएलपीज हैं, उनके जो पार्टनर्स है या स्टाफ है, दे विल ओनली एग्जीक्यूट द एंगेजमेंट्स, बट काम सिर्फ आपका पेरेंट एलएलपी में आएगा। आफ्टर दैट वी विल शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी आपकी, वो शेयर कर देंगे। या फिर दूसरा केस सिनेरियो भी, कि इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन, कि पार्टनर भी कर लेंगे, पार्टनर एलएलपी एंड द पेरेंट एलएलपी, दोनों कर सकते हैं। एंड देन बोथ अटेम्प्ट में उसमें बीओएम को डिसाइड करना है। देन रिकॉन्स्टिट्यूशन, कोई पार्टनर चेंज होता है, कि अगर आपने कोई पार्टनर्स को ऐड किया, या कोई पार्टनर आपका रिजाइन करके जाता है, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द आईसीआईएसएसपी पोर्टल, एमसी आरओसी की कोई कोई जो भी रिक्वायरमेंट्स है, दैट यू हैव टू चेक। देन एग्जिट, हमेशा इशू आता है एग्जिट के ऊपर, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था डीमर्जर। वहां पे भी मैंने बताया था मर्जर इज योर मैरिज एंड डीमर्जर इज योर डिवोर्स। तो नाउ द एग्जिट प्लान, या आई एम नॉट सेइंग कि आपकी लड़ाई हो के आप एग्जिट करोगे, समटाइम आप प्यार से भी कहते हो कि ठीक है, नहीं बन रही, चलो ठीक है, लेट्स एग्जिट। तो उसमें क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड एग्जिट है कि फॉलो आईसीआई रूल्स, जो भी आईसीआई के रूल्स है, एलएलपी एक्ट है, आरओसी प्रोसीजर है, आईसीआई को इंटीमेट करो, एसएसपी पोर्टल पे अपडेट करो, और आप एग्जिट कर जाओ। और जो पेरेंट कंपनी है, वो भी इन्फॉर्म करेगी अपना, जो भी उसकी एमसीए का प्रोसीजर है, आरओसी की गाइडलाइंस है, दैट विल डू। या फिर सेकंड केस क्या है कि पेरेंट एलएलपी कहती है नहीं, मेरे को एग्जिट करना है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो रिमेनिंग एलएलपीज है, तो दे कैन डिसाइड
कि हम किसको न्यू पेरेंट एलएलपी बनाएं, एंड देन आफ्टर दैट दे शुड इन्फॉर्म टू द आईसीआई और द आरओसी एमसीए फॉर्मेलिटीज जो भी है दे कैन डू। देन थर्ड इज कि कोई आपने डिसाइड ही नहीं किया कि फॉर एग्जांपल टू फर्म्स आर देयर, तो एक तो अकेली तो पेरेंट कंपनी बन नहीं, पेरेंट एलएलपी बन नहीं सकती, तो इट मींस इट्स टोटली डिसोल्यूशन। तो उसके अगेंस्ट आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कोई पेरेंट एलएलपी नहीं है, कोई पार्टनर एलएलपी नहीं है, सेम एज इट वाज वर्किंग बिफोर। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड ग्रीवेंस सिस्टम। जो डॉक्यूमेंटेशन है, तो अभी आईसीआई इज वर्किंग ऑन ए डॉक्यूमेंट लॉकर, कि जो जैसे हमारा डिजिट लॉकर है, तो सेम थिंग दे आर वर्किंग विद द डॉक लॉकर। वो एसएसपी पोर्टल के साथ ही होगा, आप वहाँ पे सारे सारे डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग स्टोर कर लेते हैं डिजी लॉकर के ऊपर, सेम दे आर वर्किंग विद द डॉक लॉकर। देन ग्रीवेंस सेल की कुछ अगर आपकी ग्रीवेंस वगैरह है, तो दैट कैन बी थ्रू द एम एंड एस एस जो सेक्शन है आईसीआई का, उसके थ्रू आप रिसोल्व कर सकते हो। एंड देन अनदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एलएलपी का एग्रीगेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट मींस कंपनीज वगैरह आर नॉट अलाउड एज ए पार्टनर। सिर्फ एलएलपी ही बन सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं आप, उसमें ही एलएलपी ही कर सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अलाउड। जो कंपनीज आपकी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट है 2013 में, इवन सेक्शन 25 की कंपनीज आल्सो नॉट अलाउड। अगर आप वो करते हो देन इट्स नॉट द एग्रीगेशन ऑफ कंपनी। यस, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन बिकम द डायरेक्टर इन द कंपनी, उसमें हम डायरेक्टर बन सकते हैं, बट इसमें आप डायरेक्टर एज ए पार्टनर इट्स नॉट पॉसिबल, और एज ए कंपनी एज ए पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी इट्स नॉट अलाउड। देन कुछ एडिशनल कंसिडरेशन जो है आपके, इंटरनेशनल एम्पेनलमेंट्स, यस वी कैन गो विद दैट, उसको भी कर सकते हो। सीनियोरिटी कंसेप्ट इज आल्सो देयर। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, जो भी आपकी पेरेंट कंपनी में काम आएगा, तो दैट विल बी देयर टर्नओवर। वो जो टोटल रेवेन्यू प्रोफेशनल सर्विसेज चाहे अकाउंटिंग रेगुलेशन हो कोई भी है, उसके बाद वो शेयर कर रही है, तो दैट कैन शो द एक्सपेंसेस, बट टर्नओवर विल बी दैट। और जो उसको रिसिप्ट्स हो रही है, दैट विल देयर पार्टनर एलपी एलएलपी टर्नओवर, वो पेरेंट की है। एंड देन जो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट है, पीयर रिव्यू, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, इंश्योरेंस, ऑल विल बी एप्लीकेबल। देन नाउ हाउ वी कैन स्टार्ट दैट। अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी काम करना बहुत इजी होता है, बट उसको इश्यूज भी फिर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आईसीआई सेड कि आप एक रोड मैप बना लो कि आपको कैसे काम करना है, कि फर्स्ट जो फाउंडेशंस है, कि आपको फर्स्ट आपको चेक करना है कि किस जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है आईसीआई की, उसके अकॉर्डिंगली, कि इफ वी वांट टू एग्रीगेट विद सम पेरेंट एलएलपी, तो फर्स्ट हैव सम मीटिंग, उसमें एक ड्राफ्ट डेट बनाए, फिर आपस में बैठ के देखें कौन हु विल बी द बीओएम, जो भी हमारे बीओएम है, कैसे हमने अपने ब्रांडिंग करनी है, पॉलिसी वगैरह ड्राफ्ट करो। देन सेकंड थिंग, इट्स द ड्यूटी ऑफ द बीएम टू जो आपकी आईसीआई के साथ या एमसीए के साथ आरओसी के साथ जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करें। देन आफ्टर जो थर्ड है आपका टेस्टिंग फेज है आपका, उसमें यू कैन स्टार्ट द वर्क। देन आपस में डिस्कस करो, मीटिंग्स करो, जो आपकी जो नीड है, एसओपी है, अदर प्रोसेस है, दैट यू कैन वर्क। तो दिस इज रिगार्डिंग द एग्रीगेशंस ऑफ द एलएलपी। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ द एग्रीगेशन वर्सेस मर्जर। तो एग्रीगेशंस और मर्जर में क्या फर्क है? बेसिकली जो मर्जर है उसमें आपका रिस्क ज्यादा है, एग्रीगेशन में लो है। देन एग्जिट प्लान मर्जर में डिफिकल्ट है, एग्रीगेशन में इजी है। सीनियोरिटी मर्जर में कंबाइंड है, एग्रीगेशन में सेपरेट है। मर्जर आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपने काम करना है तो मर्जर इज गुड। एग्रीगेशन अगर आप टेस्ट बेसिस पे करना चाहते हो कि मेरी बनेगी नहीं बनेगी, चलो कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है, देन यू कैन डू इट। So this is the difference between the aggregation and merger. The next is global overseas networking, जो आप मैंने आपको बताया था, that we will discuss into the अभी जो 2025 में ही काउंसिल ने पास किया है, तो इसकी जो गाइडलाइंस है ग्लोबल ओवरसीज नेटवर्किंग की, मींस अब हम बाहर की फर्म के साथ भी कोई नेटवर्किंग कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू दैट, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट पार्ट 3 और लास्ट वीडियोस। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द एग्रीगेशंस ऑफ एलएलपी। तो आई नो आज भी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, अदरवाइज इट्स वेरी लेंथी सब्जेक्ट। लास्ट टाइम भी हमने
40-45 मिनट्स करा था, तो दिस टाइम वी हैड ट्राइड कि 34-35 मिनट्स में कंप्लीट कर दें. अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि आपको इतना सारा कुछ बताने का होता है बट टाइम नहीं होता. बट यस स्टेला जी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? Very wonderfully you explained the step by step the topic, sir. Hopefully the everyone will be understood. And also the thanks a lot to joining us and also giving your valuable time, sir. Thank you very much once again to the team CSNSR for giving me once again opportunities. Yes, for the wait for the part 3 regarding the global network guidelines by the ICI, we will come with that video also very soon. Thank you very much. Bye bye. Take care.